مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں۔ خداوند خدا جو وعدوں کا سچا خداوند ہے۔ آج کا کلام ہم دیکھیں گے استریشنا اس کا 28واں باب اس کی 12 آیات میں یوں محکوم ہے، خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرضہ دے گا پر خود قرضہ نہیں لے گا۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی برکت ہو۔ یہ کلام جو ہماری باورد بولا گیا، یہ میرے اور آپ کے لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ میں تمہیں برکت دوں گا، اور اپنا آسمان کھول کر، آسمانی دریچوں کو کھول کر ہمیں برکت دے گا۔ اور جس ملک میں اس نے ہمیں رکھا ہے، کہتا ہے میں بھی وقت پہ برساؤں گا، سارے کام میں وقت پہ کروں گا، اور جس کام میں تو ہاتھ ڈالے گا میں تجھے برکت دوں گا، اور تو قوموں کو قرضہ دے گا پر کسی سے قرضہ نہیں لے گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ خدا جسے پیدائش پہلا باب اس کی 6 سے 8 میں یوں محکوم ہے، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، سو دوسرا دن۔ یہ خدا نے پہلے ہی دن سب کچھ کر دیا۔ اور پھر خدا نے پیدائش میں اگر دیکھیں تو آسمان کے سوتوں اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی وہ تھم گئی۔ خدا جب منہ سے کہہ دیتا ہے تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند فی الفول جو چیز کہتے تھے ہو جا وہ ہو گئی۔ اسی طرح خداوند ہر وقت ہر چیز کو طرح طرح سے خداوند نے ہیلنگ کے بتایا کہ کس طرح ہونی ہے۔ ایک ہی دفعہ خدا کہہ دیتے تو ہو جاتا۔ خدا نے کہ ان کوڑیوں کو کہا جب فلانے دریا میں جا کے نہا لو اور ایسا ہو جائے گا۔ پھر ایک اندھے کو مٹی لے کے آنکھوں پہ لگائی، اس نے کہا یہ مطلب تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، تو ہو جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم زبور 135 اور اس کی 6 اور 7 میں دیں گے کہ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ پریز دی لارڈ۔ جو خدا نے کیا وہی ہوا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، اور بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے، اور اپنے خزانوں سے آندھی نکالتا ہے۔ خداوند جہاں جیسے چاہے، خدا میرا اور آپ کا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے، اور بارش کے لیے بجلی چمکتی ہے، اور اتنے خزانوں سے ہوا چلتی ہے، کیونکہ ہمارا خداوند جیسا وہ چاہتا ہے ہواؤں کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے موسیٰ کو اس نے لاٹھی دی اور کہا کہ اس کو پانی میں مارنا، اور پانی 2 حصوں میں ہو گیا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ اسی طرح میرا اور آپ کا خدا باپ ہم سب کے لیے سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے یرمیہ اگر ہم 51 اور 16 میں دیکھیں کہ خدا نے کس طرح کہا، اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراہمی ہوتی ہے، اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے، اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ وہ اپنے الہی خزانے اپنے لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے، صرف جب ہم اس کے پاک حکموں کو مانیں گے، جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ استشنا 11 اس کی 14-15 میں یوں محکوم ہے کہ تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلے اور پچھلے می برساؤں گا، تاکہ تم اپنے غلے اور مہ اور تیل جمع کر سکو، اور میں تیرے چپاہوں کے لیے میدانوں میں گھاس پیدا کروں گا، تو وہ کھائیں گے اور سیر ہوں گے۔ خدا نے ہر چیز کے لیے، ہر وقت کے لیے اس نے ہمیں آگاہی دیا کہ میں سب کچھ تیرے لیے کروں گا۔ ایون وہ ہمارے بھیڑ بکریوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، ہمارے چپاہوں کے لیے بھی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کرتا ہوں، تمہیں کبھی مشکل نہ ہوگی، نہ تو تم سے جس کا مطلب کوئی حصہ تمہاری میراث میں ہوگا، یا تمہیں قرضہ دینا ہوگا، یا پردیسی یتیم اور بیوہ عورتیں جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر ہوں گے،
आएं और खा कर सैर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिन जिन को तू हाथ लगाएगा तुझको बरकत देगा। उसने कहा मैं सब कुछ करूँगा। उसने कहा हर चीज़ के लिए उसने वादा किया हुआ है कि तुमने ये करना है, पर हमें क्या करना है। इसी तरह इस्तिशना उसका 15 उसकी 6 में यूँ माकूम है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जिसे उसने तुझसे वादा किया है तुझको बरकत बख्शेगा और तू बहुत सी कौमों को कर्जा देगा, पर तुझको उनसे कर्जा लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा, पर वो तुझ पर हुक्मरानी करने ना पाएंगे। उसने हमको किसी को भी मोहताज नहीं रखा। उसने हमें सर बनाया है, दुम नहीं बनाया। उसने जो कह दिया है वो करने पे कादिर है। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेना है। उसने जो वादा किया वो कहता है मैं तुम्हें। इसी तरह अगर ज़बूर 37 उसकी 24-26 में यूँ माकूम है, अगर वो गिर भी जाएं तो पड़े ना रहेंगे, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथों से संभालता है। मैं जवान था, अब वो बूढ़ा हो गया, तो भी मैंने सादिकों को भीख बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता है और कर्जा देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने कहा है, ये ज़बूर नवीस कह रहा है कि देखो मैं आज बूढ़ा भी हो गया हूँ, लेकिन मैंने सादकों के बच्चों को जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, जो खुदा की मर्ज़ी पे चलते हैं, जो सादक हैं, कहते हैं उनकी औलाद को कभी मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। हाँ, अगर वो किसी वजह से बीमारी में पड़ गए, दुखों में चले गए, तकलीफ़ों में चले गए, लेकिन खुदा ने कहा वादा किया कि वो गिरे ना रहेंगे, वो उठ खड़े होंगे, और मैं उनको अपने हाथों से, उसने कहा मैं अपने हाथों से उसे संभालूंगा। ये खुदा के वादे हैं, क्योंकि वो फिर क्या कहे, वो उनके बच्चों पर मैं रहम करूंगा, और कर्जा, वो जो कर्जा देते हैं उसकी औलाद को बरकत दूंगा। जो खुदा कहता है किसी गरीब को देता है वो मुझे देता है। खुदा ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जो गरीब की में को देखता है उसे कर्जा देता है, वो खुदा को कर्जा देता है। इसी तरह ज़बूर 37:3 में कि खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परविश पा। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करनी है, उसके कलाम के मुताबिक नेकी करते जाना है। खुदा कहते हैं ना कि नेकी करो तो समुंदर में डालो, ना तूने दाएं देख ना तू बाएं देख। सिर्फ वक्त पर जो आपकी नेकी है, वो जिस चीज़ की जब ज़रूरत होगी खुदावंद उस चीज़ को हमारे लिए मुहैया करेगा, सब कुछ करेगा। बहुत ज़्यादा देखा कि बहुत दफ़ा सुना ये हवाला, वो कड़ी नेकी कीती हुई तेरे काम आ गई है ना। तो इसी तरह ऐसी कहावतें बनी हुई हैं जो सच्ची हैं। तो हमें खुदा कहता है कि वफ़ादारी से खुदा में चलते रहो और उसके कलाम को लेते रहो। और इसी तरह कलाम मुक़द्दस ज़बूर 119:23 में लिखा है, जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। तो हमें सिर्फ अब दौड़ना है। हमारा खुदा तो हमारा हौसला बढ़ा रहा है, वो तो हमें कलाम को दे रहा है, और हमें सिर्फ क्या करना है, कलाम को ले लेना है और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। जिसने वादा किया है वो सच्चा है, और वादों का सच्चा खुदावंद हम सब के साथ साथ है। हमें वो कभी तकलीफ़ होने नहीं देगा, हमें वो कभी मजबूर होने नहीं देगा। हमने क्या करना है, बस जब हम ईमान से राज़बाज़ ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमेशा बरकत पाते रहेंगे, हमेशा उसके कलाम के मुताबिक चलते रहें। तो खुदावंद हमारे क्या है, वादों का सच्चा खुदावंद हमें कभी मायूस होने नहीं देता, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हमने सिर्फ उसकी शफ़क़त में, उसकी साए तले आ जाना है, ताकि हम मजबूती से जो खुदा ने वादे किए हैं वो हमें उन वादों पर लेके चलेगा। चलना हमने। इसी तरह कलाम मुक़द्दस में माकूम है कि खुदावंद मेरा मजबूत किला है और वो अपनी राह में कामिल शख्स की रहनुमाई करता है, वो रहबरी करता है। जब हम उसमें चलते हैं तो वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमें हर वक्त बचाता और छुड़ाता रहता है, क्योंकि उसने कहा है कि क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है पर शरीरों की राह
नेस्त व नबूद करेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला खुदा है। हमें सिर्फ उसके वादों पे खड़े रहना है, सादब कदम रहना है। जिसके हाथ साफ हैं वो ज़ोर आवर होते जाएंगे, जो ईमान में बढ़ते हैं। जिस तरह मकाशवा के आखिरी में लिखा है, जो पाक है वो पाक होता जाएगा, जो नाजिस्त है वो नाजिस्त होता जाएगा। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा हमारी चट्टान है, वो हमारा मुकम किला है, वही हमारा छुड़ाने वाला खुदा है, वही हमारी चट्टान है जिस पर हमारा भरोसा है, और वही हमारी सुपर है, वही हमारे नजात का ऊंचा बुर्ज है। हमें सिर्फ ईमान रखना है, हमें सिर्फ तवक्कुल करनी है, बाकी काम खुदा का है। हमें सिर्फ उस पर ईमान रखना है कि वही सब कुछ है, उसी ने हमें नजात बख्शी है और उसी में हमने चलते रहना है। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जिसने वो बातें की हैं जो हमें सिखाता है, और जो हम इस कलाम को सुनते हैं वो भी मुबारक हैं, और जो इस कलाम को पढ़ते हैं वो भी मुबारक हैं, और जो उस पर अमल करते हैं वो उससे भी मुबारक हैं। तो हमें ईमान रखना है, तवक्कुल करनी है, ताकि खुदावंद जो हमें सिखाता है और जो हम सुनते हैं, हम हासिल करते हैं, जो हम देखते हैं, हमने क्या करना है, सिर्फ उस पर अमल करना है। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमें बरकत देगा। हमें सिर्फ अपनी फ़िक्रें उस पर डाल देनी है, क्योंकि उसे मेरी और आपकी फ़िक्र है, क्योंकि मेरा खुदावंद हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है। हमें कलाम मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा, हम सब का खुदा, वो बादशाहों का बादशाह। कौन से बादशाह? जो दुनिया में रहते हैं। जैसे हम उसके बेटे बेटियां, जिसे हमें उसने शाही ख़ानदान के बेटे बेटियां होने का इकरार दिया है, तो वो फ़ज़ल बख्शा है। उसी फ़ज़ल से वो हमें कहता है वो बादशाहों का बादशाह, वो हम सब का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। तो हम शुक्र करते हैं अपने बाप के बड़े फजल के लिए। जब हम उसके तख्त के नीचे आ जाते हैं, हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें, उसके कलाम के मुताबिक चलें, ताकि खुदावंद के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे हों। खुदावंद, मैं सब के लिए हाथ उठाती हूँ। खुदावंद, जितने भी आज बीमार हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, खुदावंद नजात हमारे पास है। हमारा यीशु ज़िंदा नजात दहिंदा हमारे पास है। जब वो हमारे पास है, जब वो हमारे साथ है, तो हमें कोई डर नहीं, हमें कोई खौफ नहीं। हमें सिर्फ उसके कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लेना है, क्योंकि उसने सब वादे किए हैं। खुदा ने जो वादे किए हैं वो 6 नहीं बल्कि 7 हैं। उसकी जो वादे हैं, उसने कहा मैं आपके साथ रहूँगा, उसने कहा मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, उसने कहा मैं तुम्हारी ताकत बनूँगा, उसने कहा मैं तुझे हर बात का, हर दुआ का जवाब दूँगा, और मैं तुझे मुहैया करूँगा, मैं तुझे इत्मीनान और तसल्ली दूंगा, और मैं हमेशा, मेरी मोहब्बत हमेशा, उसने कहा हम में कायम रहेगी, क्योंकि मेरा और आपका खुदा मोहब्बत से भरा खुदावंद है, और उसके जो भी वादे हैं वो सच्चे हैं। उसने कहा है तो वो सब कुछ करेगा। जहाँ यीशु नासरी आ जाता है, जहाँ उसकी हजूरी आ जाती है, वहाँ कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं रहती। यकीन करें, आज़मा कर देखें, चख के देख लें कि मेरा और आपका खुदा कितना रहीम और रहम करने वाला खुदावंद है। हमें सिर्फ पूरे तौर पर उसकी हजूरी में आना है। अपने आप को हमेशा के लिए, अपने आप को, अपने घराने को, अपने बच्चों को, चलते फिरते, उठते बैठते, खुदा ने कहा नींद में भी तुम मेरे कलाम की दीवारों पर लिख लो, माथों पे तवीद की तरह बना लो, मोड़ लगा लो कि ये कलाम हमारे से हमारी नस्लों में ट्रांसफ़र हो, और हज़ारों नस्ल, एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, इस कलाम को आगे लेके जाते रहें, ताकि सब हलाक ना हो बल्कि बचाए जाएं। क्योंकि मेरा और आपका बाप हम सबको ज़िंदगी देना चाहता है। वो हम सबको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम को, उसकी कुदरत को लेना है और उस कलाम पर अमल करना है। जो उसने कहा है उसे करना है। सिर्फ इतनी सी बात है। हम जब करना शुरू कर देंगे, एक सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे, तो सीढ़ियाँ चढ़ना आसान हो जाएगा। अगर नीचे ही खड़े सारी उम्र यही कहेंगे ओहो उतने तो चढ़ नहीं सकते, क्यों नहीं चढ़ सकते? खुदा कहता है कोशिश करो, हिम्मत ना हारो। तो जब हम
चढ़ना शुरू कर देंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी, और एक दिन होगा कि हम ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर जाके सबको कहेंगे देखो हम यहाँ पहुँच गए, खुशी करेंगे। इसी तरह जब नया बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ता है, हम लोग बहुत खुश होते हैं, आज दूसरी पे आ गया, तीसरी पे आ गया। इसी तरह वो एक दिन चढ़ना शुरू कर देता है और फिर सारी उम्र चलते ही रहता है। इसी तरह हमने भी सारी उम्र खुदा के कलाम में चलते रहना है, ताकि हम सब बचाए जाएं, ताकि हमारी नस्लें बचाई जाएं, ताकि हमारी कलीसियाएं बचाई जाएं। हम सब एक दूसरे के लिए हाथ उठाते हैं, और जहाँ कहीं भी आज कोई बीमार है, जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हर बीमारी, हर लानत यीशु के नाम से जाती रहे, और सब शिफा पाएं यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु ही जिंदा और नजात दहिंदा है। उसी ने हमें हर दुख से, तकलीफ़ों से नजात बख्शी है। खुदावंद हम सब ने आपके नाम से मांगा है, क्योंकि आपने कहा जो कुछ मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो वो देने में कादिर है। हमने उसी नाम से मांगा और पाया है। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।